Hello guys, Assalamualaikum. It's me Awais and welcome back to my YouTube channel, The Spike Hunter. This channel is purely for education purpose, where I show you guys how I trade boom and crash synthetic market with the help of my indicator Soniki Murgi. And now let me tell you something about this indicator first. That the price of this indicator is at $200, lifetime access, no hidden charges, no monthly fee, one-time investment, and the accuracy of this indicator which I made is like 95%. No deep analysis required. It avoids false entry and it helps you to grow your capital consistently. And this indicator gives you more than 50 signals a day, and all you need is a proper risk management and you're good to go. Anyone interested, contact me directly on Telegram. Link is in the description box. And remember, first learn the execution, then earn the money, right? And so, without wasting any time, let's jump into the charts, and I'll show you live exactly how Sonic Mugi works and how I execute my trades, and you can judge it by yourself. All right. So we are waiting for a specific signal. Once we'll get a signal, we're gonna execute the thing. How I execute, and the people who buy the indicator from me, they were asking that how you execute the trades. Let me show you guys that normally all of my videos are basically for the same purpose, that the way I execute, but they were saying that you have to give us some more about that how you execute this trade. All right. So let let me start with the indication. Once I'll get an indication, I'm gonna play some trade, how I execute that trade, and when I say that this trade is 5 minute, what exactly the purpose of it, and when I say this trade belongs to 15 minute, what I mean to say that 15 minute. uh, पहले तो आप लोग ये समझ लें द 15 minute मीन्स माई स्टॉप लॉस इज लाइक 20 points, 20 candles. 1 minute की 20 candles बनेगी, आई एम गेट आउट फ्रॉम द मार्केट इफ इट डिडंट स्पाइक. और 5 मिनट से मुराद मेरा ये है कि मेरी स्टॉप लॉस जो है वो 8 candles होता है. So once I'll get a notification here, I'm gonna start executing things. TikTok पे भी I play some trades और shorts farm पे भी लगाए हैं. Boom और YouTube पे भी I place a lot of trades. So now what I'm gonna do is अभी कोई indication आए तो we're gonna start executing. मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगा कि how exactly I execute the trade with the help of my indicator. So, first of all ये समझ लीजिए कि मुझे इंडिकेशन आता है, उसके बाद what exactly I used to do. Once I'll get an indication, let's suppose मेरी जो पर्पस है, जो ऑब्जेक्टिव है, that is to catch a spike. Only to catch a spike, nothing more than that. Alright, मैं कोई मूव नहीं पकड़ रहा हूँ. हाँ, मार्केट स्ट्रक्चर की मुझे थोड़ी समझ है, मैं उसके मुताबिक ट्रेड को थोड़ा एग्जीक्यूट करता हूँ. लेकिन ये है कि वंस आई गेट अ नोटिफिकेशन, लाइक मुझे पता लगता है कि यहाँ से मार्केट माइट बी, इट टेक्स टाइम, तो मैं एक आध ट्रेड ओपन रहने देता हूँ जिसको मैं कॉन्टीन्यूस जाने देता हूँ. बट बिफोर एंटरिंग, एक बात मेरी आप लोग सुन लें. द पीपल हु वांट्स मी टू गिव देम गाइडलाइन, मैं उनको ये बता दूं कि मैं ट्रेड लेने से पहले अपना लॉस डिसाइड कर लेता हूँ कि ओके फ़ाइन, इस ट्रेड में मैं इतना लॉस बेयर कर सकता हूँ, और उसके मुताबिक फिर मैं लेयर्स डालता हूँ. ये नहीं कि मुझे पता नहीं है कि मैंने कितना लॉस लेना है और आई स्टार्ट प्लेसिंग द ट्रेड्स. राइट, लेट्स सपोज मुझे यहाँ पे इंडिकेशन है एंड आई स्टार्ट प्लेसिंग. यहाँ पे ले लेते हैं. लेट्स सपोज मुझे यहाँ पे इंडिकेशन है, स्टार्ट प्लेसिंग ट्रेड 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 ट्रेड. हर 1 मिनट बाद मैं ट्रेड डाल रहा हूँ, दो दो दिन में दो कैंडल बाद या एक कैंडल बाद ट्रेड डाल रहा हूँ. ऐसे नहीं होता, आपको देखना पड़ता है, बिकॉज आपकी ये ऑलमोस्ट 20 कैंडलें, और इस 20 कैंडलों के अंदर अंदर अगर स्पाइक आ गई तो वेल दैट इज़ गुड, आती है. लेकिन 95% अगर इफ़ इट टेक दिस काइंड ऑफ अ स्पाइक, छोटी स्पाइक ले, अगर यहाँ पे ये छोटी स्पाइक ली होती और आपकी जितनी एग्जीक्यूशन ऊपर हुई हुई थी वो हिट ना होती, तो देन आपको लॉस भी हो सकता है. तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है और उसके मुताबिक विल गोना प्ले. और अभी मैंने 6 एसेट अपनी डिस्प्ले पे शो किए हुए हैं. बूम 1900, 300, 900 क्रैश, 900 क्रैश, 600 क्रैश, 300.
होपफुली आई विल गेट अ नोटिफिकेशन ऑन दिस थिंग। मुझे इस चीज़ पे नोटिफिकेशन उम्मीद लगती है कि मार्केट कैन कम हेयर, इस जगह पे मार्केट को आना चाहिए और उसके बाद इट शुड गिव अस समथिंग। और जब भी मुझे किसी की नोटिफिकेशन आती है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं उसको 4 आवर में देखता हूँ, फिर 15 मिनट में देखता हूँ, 4 आवर में देखता हूँ, 1 आवर में देखता हूँ, 15 मिनट में देखता हूँ, और जो जो मेजर पॉइंट्स हैं आई यूज़ टू मार्क देम। और उसके बाद ज़्यादातर मैं सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस को मार्क करता हूँ। लेट्स सपोज़ ये आप देख रहे हो, मैं लाइन चार्ट पे कन्वर्ट करता हूँ। लाइन चार्ट पे कन्वर्ट करने के बाद दीज आर द लेवल्स जो मेरे लिए एक आप समझ सकते हो कि इट कैन गिव अस अ होप कि यहाँ से मार्केट स्पाइक दे इफ़ वी गेट सिग्नल हेयर। लेट्स सपोज अगर आपको यहाँ सिग्नल आया तो आई वाज एक्सपेक्टिंग दीज थिंग्स टू बी टैग, इनको टैग करें और मेरी ट्रेड्स यहाँ पे लगना शुरू होती है और उसके बाद इट्स अ क्वाइट बिग मूव, तो ये आपको अच्छा प्रॉफिट दे देता है। लेट्स सपोज अगर हम इसको चार्ट्स में देखें तो यहाँ पे इंडिकेशन आया और मैं अपनी इंडिकेशन लेट्स सपोज यहाँ पे लगा देता है, इस सपोर्ट को देखकर, इस सपोर्ट को देखकर, इस सपोर्ट को देखकर यहाँ पे मैं मल्टीपल ऑर्डर्स लगाता हूँ ताकि बिहाफ ऑफ दैट मूव, और ये मूव जो था ये अच्छा खासा बड़ा मूव था। तो अगर लेट्स सपोज आपकी 0.2, अगर हाँ एक चीज़ इंपॉर्टेंट समझिएगा, आपके पास $100 है, डजंट मीन कि आप यू स्टार्ट प्लेसिंग द ट्रेड विद वन लॉट से प्ले मत कीजिए और ना ही इसको करें। एटलीस्ट लेट्स सपोज आपका अकाउंट जो है, इफ़ यू डू हैव अ 5000 कैपिटल, $5000 USD कैपिटल, तो फिर आप उस पे 1 की लॉट पे प्ले करें, बिकॉज ज़्यादा की तरफ मत जाएं, बिकॉज ये इंडिकेटर इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ इंडिकेशंस। और आप आराम से टारगेट रखें अपना $50, $25, $20, वट एवर द केस इज़, आप उसके मुताबिक इसको एग्जीक्यूट करें। और अगर लेट सपोज़ आपको लगता है कि नहीं एग्जीक्यूशन में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ डू लेट मी नो, स्टॉप कर दें ट्रेडिंग और मुझे बताएं, मैं आपकी जितनी हेल्प कर सकता हुआ मैं करूँगा। और थोड़ी कम्युनिटी डेवलप हो जाए और उसके बाद फिर मैं लाइव एग्जीक्यूशन किया करूँगा और लाइव एग्जीक्यूशन में हम सब मिलकर 1-2 घंटे में ट्रेड करके अपना टारगेट पूरा करके विल गेट आउट फ्रॉम द मार्केट। मेरा नॉर्मली यही काम होता है कि जब भी मुझे एक सेटअप अच्छा मिल रहा होता है तो तब मैं उसमें एंटर होता हूँ, बिकॉज़ बार बार आपको शुरू में बड़ा ज़बरदस्त चस्का आना शुरू होता है जब आप ये ट्रेड लगा लेना शुरू होते हैं और आप प्रॉफिट में जा रहे होते हैं। आपका दिल करता है यार 3 ट्रेडें मेरी ठीक हुई हैं, तो अब मैं लॉट बढ़ाता हूँ और ज़्यादा पैसे कमाता हूँ। छक्के भी लगते हैं, बट अगर वो स्पाइक ना दे, इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड यू मस्ट नो हाउ मच अमाउंट यू कैन बेयर, आप कितना लॉस बेयर कर सकते हो। इफ़ यू डोंट नो हाउ मच अमाउंट यू विल गोना बेयर, तो भाई आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। सो आई एम हेयर ऑन 15 मिनट, आई एम एक्सपेक्टिंग अ ट्रेड हेयर। मैं समझता हूँ कि मार्केट को यहाँ से ट्रेड देनी चाहिए। अब तो मुझे थोड़ा सा चीज़ें, कभी बार मैं खुद भी ट्रेड्स लेता हूँ ऑन द बिहाफ ऑफ सर्टन थिंग्स। अब यहाँ पे इफ़ यू सी दैट 4 आवर को अगर मैं देखूँ तो मार्केट ने क्या किया है, मार्केट मेड दिस हाई, मार्केट केम बैक टू दिस फेयर वैल्यू गैप, इट फिल्ड इट स्वीप दिस हाई इनटू दैट ऑर्डर ब्लॉक एंड इट्स पुशिंग बैक। मार्केट को अगर देखें कि मार्केट ऊपर जाना चाहता है, यानी फॉर मी अगर आप वीकली लेवल देखें तो एक वीकली लेवल है जिसको मार्केट छोड़ के आ रही है, इक्वल हाइज बनाए हुए हैं, दीज आर द इक्वल हाइज जो मार्केट ने जनरेट किए हुए हैं और इसको मार्केट टैग करना चाहता है। और डेली कैंडल अगर आप देखें तो लास्ट डे वाज बुलिश, मार्केट ने ये पुश बैक किया बट द कॉन्टीन्यूस मूव वाज बुलिश। मार्केट ने ये हाई टैग किया, हाई टैग करने के बाद मार्केट ने इसके ऊपर क्लोज किया। मार्केट हैवंट फिल्ड दिस फेयर वैल्यू गैप, इट विल कम फॉर दिस फेयर वैल्यू गैप, ये आएगा, लेकिन कब आएगा, आई एम एक्सपेक्टिंग दिस थिंग टू बी टैग फर्स्ट, उसके बाद ये लो टैग हो, इसके बाद ये एक जगह है जहाँ से वी आर एक्सपेक्टिंग एक अच्छा पुश मिलेगा, बट इन द एंड मार्केट शुड कम हेयर, यहाँ से ऊपर भी जा सकती है, वी डोंट नो, लेटर ऑन मार्केट कैन कम हेयर। सो अब हमने ट्रेड लेनी है तो वी कैन सी द डेली इज़ बुलिश, बट डे डे बिफोर येस्टरडे वाज लाइक बेयर, काफ़ी बुलिश, काफ़ी बेयर मूव था ये। और अगर हम 4 आवर पे देखें, अगर हम लेट्स सपोज वन डेली को मैं देख रहा हूँ, डेली में मुझे पता लग गया मार्केट इज़ गेटिंग, यहाँ पे स्विंग हाई स्विंग लोज बन रहे थे, बट शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट बुलिश हुई है। जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं, इसके ऊपर ब्रेक नहीं करती, वी आर नॉट बुलिश, राइट।
वी आर स्टिल इन अ बेयरिश जोन, बट राइट नाउ शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट इज़ इन अ बुलिश जोन. मार्केट कैन कम हेयर फॉर दीज हाइज. मार्केट इनको टैग तो लाजमी करेगी. अब हम इसमें 1 आवर पे जाके देखते हैं. जब मैं डेली को देख रहा होता हूँ तो नॉर्मली आई यूज़ टू गो ऑन 1 आवर. 1 आवर पे देखें तो मार्केट में दिस हाई, मार्केट केम बैक. इसकी कोई वैल्यू नहीं है. दिस इज़ द मेजर सपोर्ट जिसको मेजर मार्केट ने फिल करना था. मार्केट ड्रैग इट, मार्केट केम इनटू दिस फेयर वैल्यू गैप. मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप से ये रेजिस्टेंस ब्रेक की एंड मार्केट इज़ इन इस ऑर्डर ब्लॉक को लेकर मार्केट इज़ ड्रॉपिंग. इफ़ मार्केट वांट्स टू गो, अब हमें नहीं पता लग रहा कि मार्केट का ये लेवल था जो जाना है या इस ऑर्डर ब्लॉक को इसने टच करना है. बिकॉज मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट फेयर वैल्यू गैप, दैट एरिया विच इज़ नॉट बीन टैग इक्वल लोज है. मार्केट इसके अंदर आ सकती है एंड चेंज ऑफ करेक्टर इज़ हेयर. मार्केट वांट्स टू कम डाउन, मार्केट शुड कम हेयर. ये वाला लेवल जो है दैट इज़ चेंज ऑफ करेक्टर. मार्केट कैन कम हेयर, यहाँ से इसको ब्रेक कर सकती है. बट दैट इज़ समथिंग एल्स. लॉन्ग टर्म परसेप्शन है. वी जस्ट नीड टू कैच अ स्पाइक. कॉन्टीन्यूस 1 आवर में 1 2 3 4 5 6 छठी कैंडल बन रही है. मार्केट ने ये लो स्वीप किया है और इससे ऊपर हम देख लेते हैं. इसे नीचे क्लोजिंग दी है, ऊपर क्लोजिंग दी है. मार्केट ने उससे नीचे क्लोजिंग दी है. मार्केट इज़ इन द फेयर वैल्यू गैप एज वेल एज दिस thing is whole is an order block which used to push the market. ये छोटी सी चीज़ जो है इसकी वैल्यू नहीं है बट इट हैज़ समथिंग, क्योंकि ये सेल बिफोर बाय था तो दैट इज़ समथिंग जो वेरी इंपॉर्टेंट. बट मार्केट जो है बेसिकली मैं इस पूरे का ऑर्डर ब्लॉक ही लूँगा. अब ऑर्डर ब्लॉक की लोगों की बहुत सी परसेप्शंस हैं, बहुत सी चीज़ें हैं. लोग सोचते हैं अच्छी बात है, अच्छा काम करते हैं और लोग करना भी चाहिए. नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग मूव फ्रॉम दिस एरिया बिकॉज मार्केट इस एरिया को टैग कर चुकी है, इस लो को भी टैग कर चुकी है और कुछ चीज़ें हैं मेरे हिसाब से. अब यहाँ पे इसको सिग्नल आ जाना चाहिए अगर मेरा वहाँ पे क्रॉस ओवर शो हो चुके हैं. और आई एम एक्सपेक्टिंग टू प्लेस अ ट्रेड हेयर. मैं 5 मिनट की सिर्फ ट्रेड लूँगा. राइट, मेरा स्टॉप लॉस इसमें 51 होगा. ये 7 मिनट है. लेट्स सपोज मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ. राइट नाउ द टाइम राइट नाउ इज़ 9:53 और मैं इसको 10 बज के 2 मिनट पे या 10 बजे तक क्लोज़ कर दूंगा. एंड आई एम एक्सपेक्टिंग अ स्पाइक बिफोर 10 o'clock. मैं इसमें समझता हूँ कि इसमें 5 मिनट की ट्रेड के अंदर स्पाइक आ जानी चाहिए. इफ़ इट वर्क्स दैट इज़ गुड बिकॉज हमें अभी नोटिफिकेशन नहीं आई. राइट, वी आर वेटिंग फॉर द नोटिफिकेशन बट ऑन द बिहाफ ऑफ माई ऑन एनालिसिस आई एम प्लेसिंग दिस ट्रेड एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दिस थिंग टू गो अप. सो इस चीज़ को ये वक्त के साथ साथ आप लोगों को समझ आएगी कि अगर आपको स्ट्रक्चर की समझ है. मेरा इंडिकेटर ये जो मैंने बनाया है दैट इज़ उन लोगों के लिए बहुत फिट है ये जो ट्रेडिंग को 40% जानते हैं. राइट, जिनको कोई सेटअप पता है और दे आर एग्जीक्यूटिंग इट और उनको पता नहीं लग रहा होता कि व्हेन टू ट्रेड दिस मार्केट और व्हेन टू टेक आउट एंड व्हेन. उनके लिए बेस्ट सिंथेटिक मार्केट में यह है. इट्स ए टेक्निकल एनालिसिस, टोटली टेक्निकल एनालिसिस है इस सिंथेटिक में. और इसमें कोई फंडामेंटल न्यूज़ का फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फंडामेंटल असर नहीं करते. सो इसमें जो बंदा थोड़ा सा चार्ट के स्ट्रक्चर को पकड़ता है और उसको ये हेल्प आउट बहुत चीज़ करती है. लेट्स सपोज यहाँ पे आई एम प्लेसिंग अ ट्रेड, आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट यहाँ पे सिग्नल दे और अगर मार्केट यहाँ पे सिग्नल देती है दैट इज़ गुड. और क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक इसको देना चाहिए. अगर ये नहीं देती इट्स ओके, रैंडम ट्रेड थी एंड मैं नॉर्मली इस तरह की ट्रेड्स लेता रहता हूँ और on the behalf of my own work. So right now I just place a one trade. जब मैं अपनी ट्रेड प्लेस कर रहा होता हूँ अपने एनालिसिस के behalf पे इंडिकेशन के बगैर, तो नॉर्मली आई यूज़ टू प्लेस 1 trade और 2 और मैक्सिमम 3 विद द लॉट साइज़ कम से कम रखता हूँ. बिकॉज इंडिकेशन जो है इनको मैंने बहुत सी चीज़ों के साथ क्रॉस ओवर करके वॉल्यूम का अटैच किया हुआ है. जब वहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा होता है तो मुझे इंडिकेशन आ जाती है. ये with the passage of time I'll disclose कि what exactly the things I made these things, किस behalf पे I just made these indicators. यही work जो मैं अभी यहाँ पे कर रहा हूँ on the behalf of these things I just place these indicator और उसके behalf पे we are working. Right, so right now I haven't get any notification so far. So हम बूम 1000 को ही प्लेस करते हैं क्योंकि अभी मैं वीडियो तो बना रहा हूँ और वीडियो में ऑलरेडी आई गेस होल्ड ऑन मैं देखने से कितना टाइम हो गया, 14 मिनट की वीडियो बन चुकी है. सो आई जस्ट वांट कि मैं इस 14 मिनट के अंदर अगर एग्जीक्यूशन नहीं आती तो वी यूज़ टू टेक
आओ, अब मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट करता हूँ कि हाँ, थोड़ा सा वेट करता हूँ बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग अ पुश, बट 4 मिनट हैं, 4 मिनट के अंदर आई एम एक्सपेक्टिंग अ पुश फ्रॉम दिस साइड। राइट नाउ व्हाट एग्जैक्टली 15 मिनट इज सेइंग, यस 15 मिनट के मुताबिक मुझे तो यहाँ पे एक पुश मिलना हुआ नज़र आता है जो मुझे कह रहा है कि मैं यहाँ तक जाना चाहता हूँ। राइट, सो अगर यहाँ तक भी नहीं तो इस हाई को तो टैग करेगा ही करेगा, ये मैं समझता हूँ। अगर इसने नहीं पुश दिया तो विल गोना क्लोज द ट्रेड। ऑलराइट, ये मेरा ट्रेड लेने का तरीका है। ऑलराइट, दीज आर द थिंग्स। राइट नाउ इस ऑर्डर फ्लो के अंदर से आई एम एक्सपेक्टिंग अ पुश टूवर्ड्स अपसाइड। यहाँ से पहले भी एक पुश मिला था, अगेन मार्केट गेम है, थोड़ा पुश मिला बट सेलर का प्रेशर ज़्यादा है, सेलर का प्रेशर वांट्स टू गो डाउन। सो हम 4 आवर को देखें तो 4 आवर में थोड़ा सा पुश मिला था, 4 आवर में मार्केट वांट्स टू कम इनटू दिस फेयर वैल्यू गैप। इस फेयर वैल्यू गैप से मार्केट एक अच्छा मूव देगी टुवर्ड्स अपसाइड, इसको हम कैश करेंगे। फ़िलहाल हम एक छोटी सी ट्रेड को यूज़ कर रहे हैं कि हाउ एग्जैक्टली दिस थिंग वर्क। और अभी टाइम हो गया है 9:57। ऑलराइट, 9:57। सो आई हैव few more minutes और उसके बाद I'm gonna close the trade around। Alright, एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक आई जस्ट वांट दिस कैंडल। ये कैंडल मैं नहीं चाहता कि ये कैंडल इससे नीचे क्लोज हो, लेकिन पहले इसको टैग कर ले या इसको टैग करे, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। आई एम एक्सपेक्टिंग दिस थिंग टू बी टैग फर्स्ट। इस मार्केट इसको टैग करे, इस ब्लॉक को ले एंड देन इट शुड कम बैक, मैं ये समझता हूँ। सो वी आर -50 सो फार। ओके, सो वी आर हेयर, यहाँ पे हैं हम और आई एम एक्सपेक्टिंग पुश इन नेक्स्ट 1 मिनट। मैं समझता हूँ कि इसको ये 15 मिनट की कैंडल, like 9:58 is the time, before 10 it should give us a spike. I'm gonna place another trade here, यहाँ पे। right, 2 trades I just placed in, I just want this thing to go higher at least इसके ऊपर और फिर उसके ऊपर। let's see 15 minutes wants to go high or not। अगर 15 मिनट इससे नीचे ड्रॉप हो जाता है then I'm expecting a price from this level or even into my fair value gap। ये आ जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, बट ये है कि if it give us a spike from here we'll gonna utilize it। alright, so अभी हमें किसी और की नोटिफिकेशन भी नहीं आई है, so I just made this video for the sake of you people that how I actually take trade। so let's see 79, we have last 1 minute and if it closed below I'm gonna kill this trade। we are 83 down and last few minutes, last few seconds, and after that I'm gonna close this trade। Yes, I'm expecting a spike from here. Why is it not giving the spike? This is not okay, I'll wait till 10:05. all right, I'll wait till 10:05. I'm expecting because the market closed below, I'm still expecting a push from here. I'm expecting a push from here. Yes, because right now it's on the RSI 14 is on 19.4 and 60 is 33. Okay, so I'm expecting a push, but I need my signal to be here। मेरा सिग्नल को यहाँ पे आ जाना चाहिए, मेरे हिसाब से तो यहाँ पे आ जाना चाहिए था। चलो देखते हैं। I'm placing another trade here and 15 minute is showing me that, right, 15 minute is showing me that it will go high, it has to make a candle here। let's see, right now no notification, so I'm waiting। I need a spike at least till here now, and after that market should go down or either it will go for this high। अगर आप 1 hour को देखें तो 1 hour closed below into this block। now this is the place where I'm expecting, ये मेरे लिए सपोर्ट होती हैं जहाँ पे 2 कलर की कैंडल्स होती हैं, रेड एंड ग्रीन का ये जो पार्ट होता है that is my support।
एंड दैट इज़ अ मिटिगेटेड सपोर्ट। अगर इस सपोर्ट को पहले मिटिगेट कर चुकी है नेक्स्ट कैंडल तो मैं उस सपोर्ट को इतनी वैल्यू नहीं देता। इट वाज नॉट मिटिगेटेड, ये मिटिगेटेड नहीं थी, इसीलिए ये मिटिगेटेड नहीं थी। मार्केट आई, इसको मिटिगेट किया, उसके बाद ये मिटिगेट नहीं है। जहाँ दो कलर की कैंडलें हैं ये हैं, उसके बाद और उसके अलावा मैं बस फेयर वैल्यू गैप को प्रेफर देता हूँ। एंड दिस फेयर वैल्यू गैप इज़ ऑलरेडी मिटिगेट। सो मेरे लिए वैल्यू जो रखती है चीज़ वो ये वाले स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज, स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज कह रहा हूँ, सपोर्ट्स ये हैं, रेजिस्टेंस ये हैं। दो कलर की कैंडल जहाँ पे हैं, नॉट दे बॉडीज, नॉट दे विक्स, ओनली द बॉडीज। आई यूज टू मार्क देम लाइक दिस, ये देखें यहाँ पे यूँ मार्क कर दूंगा। फॉर मी दैट इज़ अ जोन, और ये मेरा एंड पॉइंट होगा। अगर इससे नीचे मार्केट क्लोज कर देती है, लेट्स सपोज 15 मिनट की कैंडल नीचे जा रही है ऊपर जा रही है और 15 मिनट क्लोज नहीं हुआ एंड इट शुड गिव अस अ स्पाइक। अगर मार्केट क्लोज कर जाती है तो आई यूज टू क्लोज माई ट्रेड्स, बेशक इंडिकेशन आया हो या जो भी हो। सो नाउ मार्केट शुड गिव अस अ इंडिकेशन। अभी तक इंडिकेशन नहीं आया एंड आई एम वेटिंग कि किसी तरीके से इंडिकेशन भी आ जाए। वैसे आ तो जाना चाहिए बिकॉज मेरी टर्म्स और कंडीशन के मुताबिक द थिंग्स आर लेवल्ड। यहाँ पे एक और मैं ट्रेड डाल रहा हूँ एंड राइट नाउ वी आर $178 डाउन। $500 का मैं लॉस लेकर प्ले करूँगा ये। अगर $500 तक इसमें स्पाइक ना आई तो I'm gonna close this trade, right? लाइव एग्जीक्यूशन है, टाइम राइट नाउ इज़ 10:03। मैं समझता हूँ कि इसको स्पाइक देनी चाहिए यहाँ से। यस, let's see, because on the behalf of 15 minute I'm playing this trade and I'm expecting this order flow to give us a push. ये फेयर वैल्यू गैप से पुश तो एक दफ़ा मिल चुका है, बट अपार्ट फ्रॉम इट आई एम एक्सपेक्टिंग अनदर पुश फ्रॉम हियर। एक बड़ा पुश आए जो इस फेयर वैल्यू गैप तक लाए और देन उसके बाद मार्केट नीचे जाना चाहती है, तो फिर दिस फेयर वैल्यू गैप जो 4 ओवर का है तो मार्केट कैन कम हियर। बट ये जो 1 आवर नीचे क्लोज हुआ है दैट इज़ नॉट गुड। अब ये 1 आवर के मुताबिक ये फेयर वैल्यू गैप फिल कर सकती है, देन इट कैन कम बैक और ईदर दिस फेयर वैल्यू गैप। और ये ऑर्डर ब्लॉक जो है ये अनटेस्टेड है राइट नाउ। मार्केट शुड कम बैक एंड रीटेस्ट दिस ऑर्डर ब्लॉक एंड देन उसके बाद मार्केट शुड कम डाउन और ईदर दिस फेयर वैल्यू, दिस ऑर्डर ब्लॉक, दिस ऑर्डर फ्लो, दिस ऑर्डर फ्लो इज़ बेसिकली इस ऑर्डर फ्लो को भी टच कर सकती है। बट मेरा शॉर्ट टर्म वी आर बुलिश। और अगर हम यहाँ देखें मार्केट काफ़ी नीचे आई, मार्केट वेंट हाई, मार्केट क्लोज अबव, मार्केट टुक दिस इक्विटी, मार्केट ब्रेक द इंड्यूसमेंट, क्लोज अबव, मार्केट इज़ इन दिस ऑर्डर फ्लो, मार्केट ने वहाँ पे ड्रॉप हो रहा है। सो इफ़ मार्केट वांट्स टू गो हाई मार्केट शुड कम, मार्केट को यहाँ से उड़ जाना चाहिए। और यहाँ पे अगर हम 4 ओवर का एनालिसिस करें तो 4 ओवर पे वी डू हैव अ फेयर वैल्यू गैप, और इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर ये जो ऑर्डर फ्लो है दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और इस ऑर्डर फ्लो पे आई एम एक्सपेक्टिंग कि प्राइस शुड टैग एंड इट शुड गो अप अगेन, right? So right now we are 239 down, all right? No indication, कुछ भी आया नहीं है and I'm just placing a trade here। आप लोगों को दिखाता हूँ कि जब मेरी इंडिकेशन आती है उसके बाद कितनी पावर होती है इस चीज़ में। This is what you have to see। Okay, yeah, on the basis of my analysis, my tuke, I'm placing this all things, I'm placing one more trade here। Okay, all right, अभी देखते हैं। Meanwhile, boom 900 is going up very good. Crash. Boom 300 is going very smooth. Crash dropped. Crash 300 dropped well. अब हमारा boom 1000 ही रह गया है जिसने मार्केट को उठाना है। So I'm expecting this thing to tag up। 4 ओवर में गंद बहुत मच चुका है यहाँ। Okay, 4 ओवर का ये जो ब्लॉक है, I want this block to be in। Alright, this thing it should be tag, और इसको टैग होना चाहिए, बट आई नीड a spike। उस स्पाइक के बिहाफ पे I'm gonna, alright, थोड़ी देर I'm gonna wait more। $313 हो गया, $50 कहाँ, $313 कहाँ। So now 13.1, right?
we are here. I'm gonna place another trade here यहाँ, और अभी मैं थोड़ी देर में इसको क्लोज कर दूंगा फिर डिड गिव अस अ स्पाइक, और मैं समझता हूँ कि इसको यहाँ से स्पाइक दे देनी चाहिए because we already placed 1 10 20 30 40 50 60 लॉट्स। ये आप 60 मत देखिएगा, आप लोगों ने 0.2 से ही प्ले करना है, 0.2 से इस पे हाथ बैठाएं, और वंस यू नो कि हाँ जी आपका पोर्टफोलियो 3000 से एक्सीड हो गया है तो देन यू कैन कम टूवर्ड्स 0.51। इट डिपेंड्स, क्योंकि 0.2 के मल्टीपल लेयर्स लगी होंगी और जहाँ पे 1 की क्लॉट लगी होगी ना उसमें फ़र्क है। ब्यूटीफुल स्पाइक, हैव यू सीन दिस? Without notification, I just place a spike here, I just place an orders here, and we are 670 up. On the behalf of certain things, मेरी notification नहीं आई थी, लेकिन फिर भी I just place this trade on the behalf of my own analysis, or we are 660 up right now, right? Or it might give us another spike after one more because I want this to, चलो ये tag हो चुका है, that is okay, बट मैं चाहता हूँ कि अगर इसने यहाँ पे लोगों को ट्रैप करना है फॉर अ प्रॉपर स्टॉप आउट, अब उसने लोगों को ये उम्मीद दी है कि इट इज़ गोइंग अप, और अगर उम्मीद अभी दी नहीं है, इट जस्ट शोड, अगर नेक्स्ट कैंडल बनाता है इसको टैग करता है तो मेजॉरिटी लोग इधर ट्रैप होंगे, बट इनडायरेक्टली इट हैज़ टू कम इनटू दिस फेयर वैल्यू गैप, इस फेयर वैल्यू गैप में आएगा। सो इसको हम बाद में देखेंगे। So right now I'm gonna close this thing first, इसको भी प्रॉफिट थोड़ा ले देते हैं 650 आप, राइट, इसको भी थोड़ा क्लोज कर देते हैं, 3 रहने देते हैं बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग अनदर स्पाइक टिल हियर, यहाँ तक इसकी स्पाइक होनी चाहिए। वैसे ही इसने टैग कर लिया, आई एम गोना वेट 3 कैंडल्स, अगर 3 कैंडल्स के अंदर इसने स्पाइक ना दी तो आई एम गोना क्लोज। मैं समझता हूँ यहाँ से नेक्स्ट कैंडल की स्पाइक दे देनी चाहिए इसको। So this is how exactly I execute my trades when I get a notification or either without notification, alright। ये notification भी मैंने खुद ही बनाई है on the behalf of volume bars, और कुछ volume का analysis करके ADX को देखकर, और उसके behalf पे I made that indicator, और जब ये इंडिकेशन आता है तो फिर तो मुझे आसान हो जाता है। जब मैं लैपटॉप पे बैठा था तो आई यूज़ टू टेक डिफरेंट ट्रेड्स बाय माय ऑन। अगर आप इस नोटिफिकेशंस पे बिहाफ पे ट्रेड लेते हो तो मैंने आपको बताया कि कैसे ट्रेड ली जाती है, स्ट्रक्चर वाइज भी आप देख सकते हो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी आप मार्क कर सकते हो। अगर आप लेट सपोज अभी देखो तो मार्केट केम इनटू दिस ब्लॉक, और इस ब्लॉक से इसको पुश मिला है, और एटलीस्ट इस लेवल तक पुश जाना चाहिए टू ट्रैप द पीपल, लोगों को ट्रैप करने के लिए। बट मैं समझता हूँ कि मार्केट शुड कम हेयर ऑन अ 4 आवर टाइम फ्रेम, बट अगर ये 1 आवर टाइम फ्रेम्स की तरफ से जाना चाहता है तो दैट्स ऑर्डर फ्लो, दैट इज सेल बिफोर बाय, ये यहाँ से भी ऊपर जा सकता है, बट क्योंकि नीचे 1 आवर पे एवरीथिंग इज मिटिगेटेड एक्सेप्ट दिस फेयर वैल्यू गैप, सो यहाँ पे भी मार्केट आ सकती है। सो on the behalf of certain things I place this trade, but मेरा majority काम होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्ले करना। अभी कोई इंडिकेशन आया नहीं था एंड आई जस्ट प्लेस दिस ट्रेड। अब मैं समझता हूँ यहाँ से एक और स्पाइक दे देनी चाहिए इसको, अगर इसने इस मिनट में स्पाइक ना दी तो आई एम गोना क्लोज दिस ट्रेड, ऑलराइट, बिकॉज ये ब्लॉक जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, मैं इसको बड़ी प्रायोरिटी देता हूँ एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दिस थिंग टू गो हाई फ्रॉम हियर इन दिस मिनट। इफ इट डिडंट आई एम गोना क्लोज दिस ट्रेड, राइट। सो 10:10 हुए हैं, राइट। हमने 5 मिनट तक कहा था पर हमने स्टॉप लॉस अपने डिसाइड कर लिया था कि 500, तो वहाँ तक आई वाज वेटिंग, और मैं समझता हूँ कि इसको एक और स्पाइक दे देनी चाहिए। चल भाई दे दो तो अच्छा है, अदरवाइज हम गोना क्लोज दिस ट्रेड। 10:11 में हम गोना क्लोज, और $350 वी जस्ट मेड, $650 वी जस्ट मेड in minutes, like 15 minutes में we just made a trade. Okay, the market is not going up, I'm gonna close all the trades, close all positions, right? So this is all about this my execution. बाकी मैं वीडियो बनाऊंगा नॉर्मली वंस आई गेट अ नोटिफिकेशन,
Like let's suppose I get a notification, how I utilize that in notification on different time frames. इसको मैं यूटिलाइज़ करना सिखाऊंगा कि मैं कैसे करता हूँ। सिखाऊंगा क्या, हर कोई खुद ही सीख लेता है, किसी के पास बहुत अच्छा तरीका भी होता है, बट मेरी नोटिफिकेशन के बाद हाउ वी गोना यूटिलाइज दो नोटिफिकेशन, दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। उसको कैसे हमने यूटिलाइज़ करना है, लाइक दिस और ये चीज़ इसको कैसे करना है। और दिन में अगर, और इसमें एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, इसमें दिन में आपको 50 नोटिफिकेशंस मिलेगी, बट इसमें मतलब ये नहीं है कि आपने हर नोटिफिकेशन मिस कर दी या कुछ कर दी, हर नोटिफिकेशन को कैच करोगे। आराम से खेलो, थोड़ा थोड़ा खेलो, हर ट्रेड से 3-4 $5 बनाने की करो। जब हाथ बैठ जाए, सही तरह समझ आ जाए, देन उसके बाद एग्जीक्यूशन करो, राइट। देन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता एक्सपैंड करो, लेयर्स बनाओ। लेकिन फ़िलहाल स्टार्ट में एक लेयर फर्स्ट ऑर्डर 0.2 का लगाते हो तो उसको एटलीस्ट $2.5 $3 या $5 लॉस पे जाने दो, देन दूसरी ट्रेड लगाओ, और वो जैसे ही प्रॉफिट में आती है तो यू कैन क्लोज दिस ट्रेड। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। 30 मिनट की बहुत बड़ी वीडियो होती है और कॉन्टीन्यूस 30 मिनट से मैं बोल भी रहा हूँ। तो बाकी मैं नोटिफिकेशन टिकटॉक पे भी मेरा चैनल है अवैस द स्पाइक हंटर के नाम से, प्लीज़ डू फॉलो दैट। एंड यहाँ पे भी आप लोग मैं शॉर्ट्स भी बना रहा हूँ, टाइम ही कम मिलता है, बेसिकली इक्विप्ड हूँ मैं इन चीज़ों से, बट टाइम ही नहीं मिल रहा होता, इस वजह से आई कुडंट एबल टू मेक द वीडियोस ऑल द टाइम। सो टिकटॉक पे मैं थोड़ा सा बना रहा हूँ वीडियोस, लोगों की अवेयरनेस लोगों को दे रहा हूँ कि हाँ भाई, अब आप लोगों में से किसी ने पैसे कमाने हैं तो आओ। द प्राइस ऑफ दिस इंडिकेटर इज़ $200, वेरी नॉमिनल मेरे हिसाब से, बहुत अच्छा है। एक ट्रेड में देख लो मैंने $670 बना लिए। सो अगर कोई समझता है और ट्रांसपेरेंट है यार, मैं कोई ब्लफ नहीं कर रहा हूँ, सीधा सा काम है, और मैं हर लल्लू पंजू का देना भी नहीं चाहता। ये द पीपल हु डिज़र्व, मैं उनसे पूछता हूँ, मेरे से जितने लोगों ने लिया है अभी तक ये इंडिकेटर, दे आर हैप्पी, वो कर रहे हैं। कुछ लोगों को समझ नहीं आई कि कैसे एग्जीक्यूट करना है, कॉन्टीन्यूस ट्रेडें डाली जा रही हैं, तो उनको मैंने थोड़ा गाइड किया है कि भाई आप ज़रा आहिस्ता हाथ रखें इस पर, आप जिस तरह हाथ रख रहे हैं इस तरह तो आप फारिग हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए बेहतर ये है कि इसको स्लो स्टडी खेलें और टर्टल की तरह काम करें, आप रैबिट ना बने। तो इट्स बेटर टू टेक ट्रेड्स विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। नहीं करोगे तो भाई अपना नुकसान है। मैंने तो अपना इंडिकेटर $200 का मिनिमम प्राइस रखी हुई है, और ये लाइफ टाइम चलेगा, या अल्लाह खैर करे, जब तक ये डायरेक्ट है तब तक काम करेगा, और अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है देखेंगे क्या होता है। लेकिन ये है कि फ़िलहाल सो फार इट्स गोइंग, कोई इतनी रॉकेट साइंस तो है नहीं, कोई लाइसेंस वगैरह तो है नहीं, सिंपल सी मैंने 5-6 चीज़ें हैं उनको मिलाया है, एंड इट इज़ गिविंग मी हेल ऑफ अ रिस्पॉन्ड। सो आप लोग देखें, एंजॉय करें, और उसके बाद समझ आई तो मेरे से टेलीग्राम पे कांटेक्ट करें, और मैं आप लोगों को इसकी फ़ाइल्स भेज दूँगा। $200 लूँगा, आपको एग्जीक्यूशन मेरी यूट्यूब पे ही नज़र आ जाएगी, हाउ आई यूज़ टू एग्जीक्यूट दीज ट्रेड्स। डायरेफ के मतलब भी एक बंदा पूछ रहा था मुझे, डायरेफ क्या है ये वो, मैंने कहा यार अब इतना टाइम तो नहीं है कि मैं आपको डायरेफ का एक्सप्लेन कर सकूं। आप उसको अकाउंट बनाओ, अकाउंट मैनेजमेंट भी मैं करता हूं, मैं 3-4 पोर्टफोलियो लोगों के रन कर रहा हूं, लेकिन उनकी बड़ी अमाउंट है, मिनिमम शुड भी $5000, और उससे कम के अकाउंट में मैं नहीं प्ले करता हूँ, क्योंकि 5000 से 5000 बनाने के बाद मैं गेम ऑन कर देता हूँ, रिस्क खोल देता हूँ अपना। तो ये प्रोसीजर है। सो आप लोग सब अपना ख्याल रखें, एंड थैंक यू वेरी मच।